Hello students, I am Umesh Chandra Yadav from LSS National Public School, Naroli, Jaunpur. I have discussed in about the reproduction in the organism in previous lecture. Class 12 subject biology. Today I will discuss in about the gametogenesis. Gametogenesis, the process of formation of the gametes, either male gametes or female gamete, which is known as the gametogenesis. The process of formation of gametes. Either male or female is called gametogenesis. There is formation of the gametes. Already you know there are two types of the gametes. Number one, male gamete. First one, male gamete. Second, female. Female gamete. The male gamete produce from the male sexual organs and the female gamete is produced from the female sexual organs. Today I will deeply discuss in about the formation of the gamete in the case of the plants. The plants gametes. In the case of the plants, they take their sexual reproduction by the gametes, pollen grain and the egg. There are also two types of the gametes, male gametes and female gametes. In the case of the plants, इसके पहले हम आपको एक फिगर से, फ्लावर के फिगर से समझाएंगे. पहले इसका फिगर हम समझ लेते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किन किन अंगों से प्रोड्यूस होता है. आइए देखते हैं. In the first step, we draw a figure of the flower. In the structure of the flower, this portion from stigma to the ovary, this is called pistils. That is called female reproductive organ.
reproductive organ. The uppermost part of this part is called stigma. Stigma. In middle part, that is known as the style, and innermost part is called the ovary. These parts are called female reproductive organ. That is known as the female reproductive organ. You can say in the case of the female reproductive organ, there are three main parts. Number one, stigma. Second, style, and third, ovary. That is male reproductive parts, which is known as the anther, which is connected a narrow stalk. In the case of the anther, there is development of the pollen grain. इसके अंदर pollen grain का विकास होता है. तो मैंने पहले चर्चा कर चुका आपसे कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. अब ये देखते हैं कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, इनको हमको देखना है. तो जो मेल गैमेट होता है वो एंथर से बनता है, और एंथर के माध्यम से ये पॉलन ग्रेन को बनाने का काम करते हैं, जिसको कहते हैं मेल गैमेट. पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल गैमेट. यहां पर ओवरी होती है. ओवरी में एग का विकास होता है, जो एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है. इन द केस ऑफ द ओवरी, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द एग या प्रोडक्शन ऑफ द एग, दैट इज नोन एज द एग. फीमेल गैमेट, ओवम, या इसको कहते हैं एग. आगे बात समझ में? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. दिस टाइप ऑफ द फ्लावर who bear both type of the sex organs, that is known as the monoecious or bisexual. यहां पर मोनोसियस वर्ड आता है. मोनोसियस या इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल हम बारी बारी से देखते हैं इसको. मोनोसियस या बाइसेक्सुअल का मीन्स एक ही होता है. ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों का विकास एक ही फ्लावर के अंतर्गत होता है, तो उसको कहते हैं मोनोसियस या इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल. आई बात समझ में? फिर से देखिए कि कुछ फूल ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों प्रकार के मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों एक ही फूल में होते हैं या एक ही फ्लावर में होते हैं. तो ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट्स जो कहलाते हैं मोनोसियस या बाइसेक्सुअल. क्लियर हो गया? सेकंड टाइप का होता है डायोसियस और यूनिसेक्सुअल. इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल इसको हिंदी में कहते हैं एक लिंगी. यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी. ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग फूलों में डेवलप होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं. या इसको कहते हैं डायोसियस. यूनिसेक्सुअल, डायोसियस मीन्स एक लिंगी. मोनोसियस बाइसेक्सुअल मीन्स होता है द्विलिंगी.
लिंगी। अब तो बात आ गई समझ में आपके। जैसे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द pollen grains in the case of the male sexual organs by the process of the male gametogenesis, and there is formation of the ovum in the case of the female sexual organ from the ovary, that is known as the gametogenesis. Also both are common for the male or female. तो pollen grain कैसे बनता है? तो आप जानते हैं कोई भी बॉडी 2n में होती है। 2n का मतलब कि इसका मतलब डिप्लॉयड होता है। इसको हैप्लॉयड बनाने के लिए मियासिस की आवश्यकता पड़ती है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द क्लास 11 इन अबाउट द मियासिस डिवीजन एंड माइटोसिस डिवीजन। दो वर्ड आपको मिलते हैं। एक तो पहले हम माइटोसिस समझाएंगे, इसके साथ साथ मियासिस भी बताएंगे। नेक्स्ट, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन इसे हिंदी में कहते हैं सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डीप अध्ययन आप कर भी चुके हैं। हम इसको रिपीट करते हैं। जब कोई सोमैटिक सेल क्या सोमैटिक सेल दो सेलों में बढ़ता है और इसके क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज लाइक पेरेंट सेल, तो इस डिवीजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन। जैसे कोई सेल होता है, और यह 2n अवस्था में है, ये मदर सेल है। मदर सेल 2n का मतलब कि क्रोमोसोम नंबर ये इसमें डिप्लॉयड होता है, और यह डिवाइड करके दो सेलों में बढ़ जाता है। कितने सेल बनते हैं इससे? एक सेल से दो सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? दो सेल बनते हैं। सोमैटिक सेल ऑलरेडी माइटोसिस डिवीजन इज अकर इन द ओनली सोमैटिक सेल्स। एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, दो सेल का निर्माण होता है, और इनके क्रोमोसोम नंबर में कोई अंतर नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। पहले से इंडिकेट किया गया है कि क्रोमोसोम नंबर 2n है मदर सेल में। एक मदर सेल जब दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो कहने का मतलब कि दोनों डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर भी 2n ही होगा। 2n इसका हो जाता है, 2n इसका हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है। 2n इन द केस ऑफ द मदर सेल एंड 2n इन द केस ऑफ द डॉटर सेल। लेकिन एक सेल से फिर दो सेल बनते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन या सूत्री विभाजन। तो इसको फिर से देखिए। जब एक सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका डिवाइड होकर के दो इसके पुत्री कोशिकाओं में बदलती है और इसके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के डिवीजन को कहते हैं सूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन। बट इट इज डिफर फ्रॉम द मियासिस। सेकंड होता है मियासिस डिवीजन। देखिए, मियासिस डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन।
हाँ, मैंने बताया आपको अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जननी कोशिकाओं में होता है। द मियोसिस डिवीजन अकर्स ओनली इन द केस ऑफ द जर्मिनल सेल्स। अगर यहां पर एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द 4 डॉटर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। एक डॉटर सेल, 2, 3, 4 बाय द स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल, इनको डॉटर सेल बोलते हैं, DAUGSTER, डॉटर सेल। अब कोई भी सेल अपने डिप्लॉयड स्टेज में पहले होती है, जैसे यहां 2n है क्रोमोसोम नंबर। अब यहां पर अंतर ये होता है, यह इससे सूत्री विभाजन से थोड़ा सा अंतर इसमें ये होता है कि मदर सेल का डिप्लॉयड वह डॉटर सेल में जाकर के हैप्लॉयड हो जाता है। आई बात समझ में? आप देख रहे हो मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर 2 है, यह डॉटर सेल में इसका हाफ हो जाता है, यानी प्रत्येक डॉटर सेल n क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, यानी क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो आधा हो जाता है इन द केस ऑफ द डॉटर सेल। फिर से समझिए, जब एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करे और इसके क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन हो जाए, यानी क्रोमोसोम नंबर मदर सेल का 2n है और डॉटर सेल में इसका आधा हो जा रहा है, n हो जा रहा है, प्रत्येक में n हो रहा है, तो इस प्रकार के डिवीजन को कहते हैं मियोसिस डिवीजन, या इसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह जर्मिनल सेल में होता है, जननी कोशिकाओं में ही पाया जाता है। एक मदर सेल चल करके विभाजित होकर के 4 डॉटर सेल का निर्माण करे और इसके क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। द मियोसिस डिवीजन इज कॉल्ड आल्सो रिडक्शन डिवीजन। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। तो आपने देखा सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 2 टर्म में आता है, एक हैप्लॉयड का, दूसरा डिप्लॉयड का। जब सूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर हमेशा 2n होता है, इसको कहते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। जब अर्धसूत्री विभाजन में ये परिवर्तन हो जा रहा है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर मदर सेल में 2n है और डॉटर सेल में n हो रहा है, तो प्रत्येक सेल हैप्लॉयड हो जाते हैं। अब तो बात आ गई होगी समझ में आपके। जहां पर 2n होता है उसको डिप्लॉयड बोलते हैं और जहां पर n होता है इसको बोलते हैं हैप्लॉयड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।